Yes, good afternoon. Am I audible? Yes, आवाज जा रही है बेटा? yes, sir. Sir, आ गए हैं सभी लोग? अभी आ रहे हैं? बरकछा वाले भी हैं? आदर्श? sir, many students are not able to join this class. मेनी? कैसे? हाउ? नाउ दे आर एबल आई थिंक. Yes, sir. Available. हाँ हाँ. आदर्श? Yes, sir. बरकछा के लोग हैं? Yes, sir. ओके. लेकिन अभी बहुत कम स्टूडेंट, 36 ओनली आई एम फाइंडिंग ऑल टुगेदर टोटल बोथ द कैंपसेस. हैं? क्या नहीं खबर लगा है क्या लोगों को? सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ. आवाज जा रही है हमारी? अनिकेत? Yes, sir. Okay. So we have already discussed about the requirement and the need of back cross breeding. As you know that when the variety you have developed in due course of time, that becomes susceptible to some of new races or some other defects. If you are finding in a popular variety, you are going to have the improved version of that. So you are requiring that all the characteristics of that variety should be similar to the improved version. In the improved version, with added advantage of that particular gene which you are willing to introgress, the dominance, the resistance I mean, or any other trait, resistance to any biotic abiotic stresses, maybe for drought tolerance, maybe for submergence tolerance, maybe for salt tolerance, maybe for temperature sensitivity, maybe for any biotic stresses. So you have to search the donors and you have to see the behavior of the donor, genetic behavior of the donor, and it's the gene of interest, whether it is dominant or recessive or polygenic or oligogenic inheritance. So accordingly you are planning your back cross breeding program. So when the gene of interest is your recessive, then it becomes complicated to introgress that gene into your mega variety or popular variety or whatever you said, the recipient parent or recurrent parent or susceptible parent, whatever you say.
So it becomes little complicated, because once you are making crosses between your recurrent parent or recipient parent with the donor, once donor is having the recessive gene which you are going to transfer, which is having the resistance for particular diseases or particular biotic stresses or any quality traits. If it is recessive, then it becomes complicated. Once you are crossing, making crosses between the recipient and donor, the F1 is coming, that will be susceptible if you are crossing for the dominance, for the resistance. So your F1 becomes susceptible. So we are unable to understand whether it is, have you got the gene of interest in F1 or not, because you cannot go for testing, because as the recipient is susceptible, similarly F1 is also susceptible. So there is no need of testing even. So ultimately you are going to back cross it with the recurrent parent, with the recipient parent, with the susceptible parent, whatever you say. Here also you are using the recipient parent or the susceptible parent as a female to get the cytoplasmic genes also in the progenies. So ultimately you are, then you have to back cross it. So you will be getting BC1. Then in BC1 also you are not going to get your resistant plant. So again you are unable to go for testing. So you have to, accordingly, BC1 has to be selved, so that you can get the, if you are transferring the resistant genes, and that is small r, so you have to get the small r in homozygous condition, the plants, few plants in BC1 F2, then only you can go for testing for that particular gene, whether you have got or not in the progeny. So that plant you are going to select. अब इसमें ये तो लोग कह रहे थे वेवेक्स में ऐसा नहीं होता है, ये क्या हो रहा है अभिषेक? ये आवाज लोगों ने कहा था वेवेक्स में नहीं होता है। अभिषेक, मेरी आवाज जा ही नहीं रही थी क्या तुम लोगों को? I'm audible. तो अभी कोई गाना हो रहा था, तुम लोगों को सुनाई दिया क्या? Yes sir. ओके, तो हमारा कहना है, हमारे कलीग्स बोल रहे थे कि वो वेबएक्स में नहीं होता है ऐसा, इट इज आल्सो कमिंग इन दिस, है इसमें भी हो, है? हेलो, आप पार्टिसिपेंट्स को सर म्यूट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। हाँ, पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो पार्टिसिपेंट्स, चलिए ठीक है। तो बेटा अब आप लोग, जैसा हमने वीडियो कहा था कि आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, बैक क्रॉस मेथड पार्ट 3 फॉर ट्रांसफरिंग द रिसेसिव जीन इनटू योर commercial variety, for improving that variety. So I think you must have gone through the video. Only one video I had given of around 22 minutes or like that. तो आप लोग गए होंगे, आप उसको बताइए कि if you have some confusion then we can have discussion on it. तो आप one by one कुछ confusions हो तो बताइए, हम लोग डील करते हैं। Others? Yes sir. हाँ बताइए, कुछ है तो। सर
सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्लांट्स आर नेसेसरी इन बैक क्रॉस जनरेशंस ड्यूरिंग क्रॉसिंग? अच्छा, एक मिनट फिर से एक मिनट, लेट मी राइट। हाउ मेनी प्लांट्स? सर जब हम बैक क्रॉस करते हैं वो जीन को ट्रांसफर करने के लिए, तो कितने नंबर ऑफ प्लांट नेसेसरी होते हैं? नहीं, ट्रांसफर के लिए नेसेसरी होते हैं या किस चीज के लिए? सिलेक्शन के लिए या किस चीज के लिए, या क्रॉस बनाने के लिए, किसके? सिलेक्शन के लिए, जैसे हम थर्ड या फोर्थ जनरेशन में PC1 करते हैं बैक क्रॉस, तो सब कितने नंबर ऑफ प्लांट्स मिनिमम या मैक्सिमम होने चाहिए बैक क्रॉसिंग के लिए? अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर बैक क्रॉसिंग। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आशीष Yes, बोलिए। sir, which method is easier than sir like sir जिसमें रिसेसिव जीन अगर ट्रांसफर करना वो इजी होगा कि सर डोमिनेंट? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आशीष बोले थे ना, Yes sir. which method is easier for whether transferring dominant or recessive? Dominant or recessive, यही ना? Yes sir. हाँ ठीक है, नेक्स्ट अंशु कुमार। सर आई हैव नो क्वेश्चन। You don't have any question. Very okay. अंशुमन त्रिपाठी, हाँ बताओ प्रश्न। सर ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एक मिनट, अंशुमन ओके, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए भाई। धर्मेंद्र मीना, प्रांजल सैनी बोलिए। राशि मित्तल, राशि No, sir, I don't have any doubt. ठीक है। रितेश जो बोल रहा है नो डाउट, तो उससे मैं प्रश्न पूछूंगा तो उसको बताना पड़ेगा, जो वीडियो हमारे हैं उसी में से किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। जो लोग जो है कह रहे हैं कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, उनसे मैं पूछूंगा। हाँ, कौन बोल रहा है? यस सर। सर ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? रितेश सर। रितेश, हाउ टू मेक शॉर्ट प्रोसेस। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और कुछ? शशांक, सर सेम क्वेश्चन है रितेश। सर लंबा प्रोसेस है सर, इसमें से शॉर्ट कर सकते हैं? Excuse me, sir. हाँ कौन बोल रहा है? The question, खुशी, sir. हाँ खुशी बोलिए। Sir, same question with this. रितेश का क्वेश्चन, हाँ मेरा भी सर सेम। सर शॉर्ट पीरियड कैसे किया है? अरे और भी कुछ पूछो, वो तो रहेगा ही। हेलो सर। हाँ हाँ, सर मेरे फील्ड में कौन है? एक मिनट, गिरजेश। हाँ यस सर। सर एक एराइज 6444 का हाइब्रिड वैरायटी मतलब ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उसमें लूज स्मट के लिए मतलब ससेप्टेबल है, तो इसको जैसे जब भी मतलब हाइब्रिड वैरायटी लॉन्च किया गया तब उस समय मतलब बायोटिक और एबायोटिक ध्यान नहीं रखा गया, तो हाँ बताइए। जब भी वैरायटी
लॉन्च किया गया है इसको, तो मतलब ये लो जिसमें कैसे मतलब ससेप्टेबल होगा? अच्छा चलिए, नेक्स्ट। हेलो सर, हाँ बोलिए बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। आदित्य आदित्य हाँ आदित्य बोलो। सर एक कंफ्यूजन है सर, और यस सर हम बार बार क्रॉस करा रहे हैं, तो सर हम बार बार जो है रिकरेंट पैरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, तो हाँ। सर हम दोनों पैरेंट से क्रॉस नहीं करा सकते हैं? अच्छी बात, ठीक है। रिकरेंट पैटर्न से बार बार क्यों क्रॉस कराते हैं, यही मतलब ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, बताइए। सर हम लोग जो प्लान चूज करते हैं अनुष्का ना? यस सर, अनुष्का, तो ठीक। जो प्लान चूज करके हम लोग वो सिमिलर टू एक ही लेते हैं, हाँ एक मिनट। प्लांट जो हम लोग सेल्फी या कॉफी के बाद प्लान को चूज करते हैं आगे जनरेशन के लिए, वो सिमिलर टू एक ही लेते हैं। सिमिलर टू तो फिर ऐसे भी होता है, सिमिलर टू ए, अलग-अलग का नहीं है। सिमिलर टू ए। होता है ये। ए क्या है? हाँ, और सर ये आपका ससेप्टेबल और रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट ना, सिमिलर टू रेसिपिएंट, ठीक है। क्यों लेते हैं? हाँ वो लेते हैं। ठीक, ठीक है बेटा। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर सर इस मेथड पे सर हमें 3 बार क्यों सेल्फिंग करनी होती है सर? 3 बार सेल्फिंग? तो रिसेप्शन 3 बार सेल्फिंग क्यों? हैं? हम तो 2 बार भी सेल्फिंग कर सकते हैं सर। कौन? सर 3 बार सेल्फिंग क्यों करते हैं? दीपांजन, हैं? यस सर। तो दीपांजन भाई 3 बार सेल्फिंग क्यों करते हैं? यस सर। एक बार भी कर सकते हैं। सर नहीं 2 बार सर, एक बार तो सर करना ही होगा सर। 2 बार भी कर सकते हैं सर, 3 बार क्यों करते? 3 बार एक्स्ट्रा क्यों करते हैं सर भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट की बात कर रहे हो? ये किस जनरेशन हैं? नो सर मैं 6th ईयर में सर एक बार दोबारा करते हैं, और सर फिर 9th ईयर में फिर से हमें तीसरी बार करते हैं सर। तो 3 बार क्यों करते हो भाई? 3 बार नहीं करते हैं हम लोग, तो 11वां बार भी करते हैं, 12वां बार भी करते हैं, 12वां ईयर भी करते हैं, 13वां साल भी करते हैं, 14वां 15वां साल भी करते हैं सेल्फिंग, और 3rd ईयर भी टेस्ट सेल्फिंग करते हैं। तो कैसे, तो 3 ही बार कैसे हो? तो कई बार हो गया दीपांजन। 3 बार तो नहीं, बहुत बार हो गया। तुम देखो ना, 3rd ईयर एक मिनट तुम जो कर रहे हो 3 ही बार करते हैं। BC1 में करते हैं, 1 बार हो गया। BC1 F2 आ गया, फिर BC2 में नहीं करके फिर BC3 में करते हैं। BC3 करते हैं तो BC3 F2 हो गया, 2 बार हो गया। BC4 में नहीं करते हैं, फिर BC5 में करते हैं, BC5 से BC5 F2 हो गया। ये तो कई बार सेल्फ किया गया। कैसे तुम कर रहे हो 3 ही बार किया गया? सर सेल्फ तो बहुत बार किया गया, लेकिन सर स्मॉलर वैरायटी को हम क्यों निकालते हैं सर? 2 बार निकालते नहीं है सर, स्मॉलर 3 बार निकालते हैं। स्मॉलर जीनोटाइप वैरायटी जो सेल्फिंग करने के बाद सेल्फिंग पहले जनरेशन में यस सर स्मॉलर जीनोटाइप। स्मॉल आर जीनोटाइप क्यों लेते हैं? यस सर 2 बार। यस सर वो तो सर रिसेसिव है सर, उसको तो सर 2 बार क्यों लेते हैं सर? मतलब नहीं, स्मॉल आर रिसेसिव है तो उसको क्यों लेते हैं, ये कहना है तुम्हारा दीपांजन? अच्छा, तुम Yes, sir. स्मॉल आर क्यों लेते हैं, ये कहना चाह रहे हो? यस
सर। अच्छा चलो ठीक है, बता देंगे। आगे नेक्स्ट। और कोई? ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन मोर। बोलिए। ठीक है, अब वन बाय वन हम चलते हैं। आदर्श, हाउ मेनी प्लांट्स, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड फॉर बैक क्रॉस? आदर्श? यस सर। अरे बेटा, इसमें करना क्या है, शुरू में तो बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे जो बल्क का या वो ये सेल्फ करते हो, सेल्फ करने के बाद स्मॉल आर आएगा ना, यस सर। तो वो तो विजिबल हो जाएगा। विजिबल इसलिए होगा कि अगर डिजीज़ के लिए कर रहे हो तो वही प्लांट होगा, जितने स्मॉल आर जिस जीन्स में होगा वो प्लांट्स रेसिस्टेंट होंगे। आदर्श है ना? यस सर। और उन्हीं प्लांट्स को लेना है। तो मान लो तुम 100 पौधा लेकर चल रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल, और उस 100 पौधे में आपको 10 पौधा ऐसे दिखे जो स्मॉल आर है। आप जेनेटिक रेशियो आप देख लोगे तो एग्जैक्ट बता दोगे, लेकिन अभी मैं ऐसे यहाँ पे थ्योरेटिकल चल रहा हूँ कि 10 पौधों में स्मॉल आर है। आपने टेस्ट किया 100 पौधों को, 10 पौधा आया, आपने इनोकुलेट कर दिया वो इनोकुलम उस डिजीज़ के लिए जिसके लिए आपने काम किया है, बैक क्रॉसिंग या क्रॉस बना रहे हैं, तो वो स्मॉल आर जिसमें होगा वो रेसिस्टेंट होगा और बाकी ससेप्टेबल होंगे। तो 10 पौधे जो स्मॉल आर वो रेसिस्टेंट हैं, वो स्मॉल आर हैं। उन 10 पौधों में वही पौधा पकड़ो जो इज क्लोजर टू योर रिकरेंट पेरेंट, क्योंकि सारा जीन हमें अल्टीमेटली लाना है उसी का, रिकरेंट पेरेंट का, सो दैट कि द इम्प्रूव वर्जन इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो यही करते हैं और कोई बात नहीं, एक पौधा ही बहुत है। आदर्श सर यहाँ एक चीज और पूछना था। हाँ, सर यहाँ जो हम देख रहे हैं कि उसके क्लोजर होना चाहिए, तो क्लोजर उसके फिजिकल बेसिस पे होगा ना? नॉट फिजिकल, फिनोटिपिक, डोंट से फिजिकल, फिनोटिपिक। फिनोटाइप जीनोटाइप यही तो होता है ना, क्रॉसेस बना के हम जीनोटाइप देख लेते हैं। फिनोटाइप जो भी प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, विजिबल है, वो फिनोटाइप हो गया। तो फिनोटाइप जीनोटाइप बोलो, फिजिकल नहीं है, वो टर्म गड़बड़ हो जाएगा जेनेटिक्स के उस पर। फिनोटाइप बोलो, फिनोटाइप बेसिस पे जो आंख से दिख रहा है उसी बेसिस पे, जैसा हमारा ओरिजिनल पौधा है कमर्शियल वैरायटी, एकदम उसके जैसा जो पौधा नज़दीक दिख रहा हो उसके, उसी को सेलेक्ट करेंगे। बस एक पौधा बहुत है, एक पौधा की एक बाली बहुत है ना? आदर्श, आर यू क्लियर? आदर्श चले गए क्या? आवाज नहीं जा रही मेरी? चलिए नेक्स्ट, आशीष, which method is easier, whether transferring dominant gene or recessive gene? अरे भाई ये तो प्रश्न पूछने का ही नहीं है आशीष, ये तो खुद तुमको दिख रहा होगा कि रिसेसिव ट्रांसफर करना कॉम्प्लिकेटेड है। देख नहीं रहे? उसमें टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग तो उसमें भी करना पड़ेगा, बिना टेस्टिंग आगे थोड़े बढ़ेंगे हम। लेकिन इसमें टेस्टिंग करने के लिए आपको
बीच बीच में आपको सेल्फिंग करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ जनरेशन आर रिक्वायर्ड मोर। यस तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। इजियर कौन है, अब तुम ही बताओ, डोमिनेंट जीन ट्रांसफर करना है या रिसेसिव जीन ट्रांसफर करना है? सर डोमिनेंट। तब इसमें क्या पूछना है? और कुछ पूछना चाहते हो जो हम ना समझ पाए तुम्हारी बात, तो पूछो। नो सर। यही था ना? ओके बेटा। अंशुमन, इट इज लॉन्ग प्रोसेस। अंशुमन, ये क्यों क्यों बोल रहे लॉन्ग प्रोसेस? व्हाई डू यू से लॉन्ग प्रोसेस? अंशुमन, मतलब परीक्षण करने के लिए इतना लंबा टाइम, 12-14 साल का टाइम सिलेक्शन। अब ये बताओ कि एक जीन है सब1, जैसा हमने बताया था सोना में, हालांकि वो अलग मेथड से बताएंगे हम कैसे किया गया। सोना राइस वैरायटी जो मेगा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा एरिया में लगाई जाती है। वो जब बाढ़ आता था तो हजारों हजार हेक्टेयर बर्बाद हो जाते थे। और हमने तुमसे कहा भाई सोना हजारों, हर साल किसान लगाते ही हैं कि कभी बाढ़ आता है तो बह गया खत्म, कभी नहीं आया तो खुश हो जाते थे कि बहुत अच्छा है। लेकिन अब एक जीन सब1 पाया गया जिसमें अगर हम बैक क्रॉस से कहें कि भाई 12-14 साल 15 साल बाद जो है तुम ठीक है किसानों को दे दो 15 साल में, तो 15 साल बाद कम से कम ऐसा तो होगा ना कि फिर अगर वही चीज़ किसान लगा रहे हैं कि नहीं हम वही लगाएंगे, सोना लगाएंगे, भले एक साल बर्बाद हो एक साल ठीक हो, हम वही लगाएंगे। आपने फिर वही इंप्रूव करके दे दिया, खाली एक जीन 15 साल बाद, से फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा? हजारों हजार हेक्टेयर जमीन सोना जो लगा हुआ है, वो बाढ़ आया, हफ्ता 8-10 दिन तक लगा रहा, जो नॉर्मल सोना था सब गल के ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जहाँ जहाँ किसानों ने सोना सब1 लगाया था वो सारा फसल बच गया, पूरा फर्स्ट क्लास इल्ड दिया बाढ़ के बावजूद। अब बताओ क्या करना चाहिए, नहीं करें? सर मतलब करना तो चाहिए, लेकिन कुछ मतलब टाइम कम हो जाए सब प्रोसेस। हाँ ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म लगेगा तो छोड़ दिया जाए। जब तक हमारे पास जल्दी करने का टेक्नोलॉजी ना आए तब तक उसको ना करें हम। अच्छा, करना तो पड़ेगा। वेरी गुड, करना तो पड़ेगा। तो बेटा यही है कि रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट प्रोसेस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट्स कैसे किया जाए। जैसे कि एक सीजन में हम एक क्रॉप लेते हैं तो 15 साल लग जाए, क्या ऐसा कुछ हम तकनीकी कोई टेक्नोलॉजी ऐसा बना दें जहाँ जहाँ एक साल में एक ही क्रॉप लगता है कम से कम 2 लग जाए, 3 लग जाए, तो 3 गुना कम कर लेंगे हम एडवांसमेंट, काफ़ी कम हो जाएगा। एक तो ये आपके हाथ में है, यू कैन डू इट बाय डेवलपिंग सम स्मॉल लेबोरेटरी एंड अदर थिंग्स, और मेनी अदर थिंग्स आर देयर इन RGA रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको हम अडॉप्ट करके इसको कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप, हमने बताया ना, मॉलिक्यूलर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग MABB भी काफ़ी हद तक काफ़ी जनरेशन कम कर देता है, जिससे कि हम DNA निकाल कर और वो पकड़ लेते हैं कि बैकग्राउंड सिलेक्शन और फोरग्राउंड सिलेक्शन। फोरग्राउंड सिलेक्शन ये होता है, शुरू में हम करते हैं कि वेदर दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज़ कम इन योर हाइब्रिड आर नॉट, तो ये फोरग्राउंड सिलेक्शन हो गया। और फिर बार बार हम आगे बढ़ते हैं तो बैकग्राउंड सिलेक्शन करते हैं कि जल्दी से हमारी बैकग्राउंड रिकवरी हो। जिस प्लांट में हम DNA फिंगरप्रिंटिंग से, इससे मॉलिक्यूलर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग से इसको पकड़ लेते हैं जल्दी, और जल्दी ही हम उस अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाते हैं, तो इतने 15 साल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अवेलेबल है बेटा तकनीकी, अब हम लोग कर सकते हैं एंड वी आर डूइंग इट। जैसे जल्दी ही आपका सोना सब1 निकला, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, हालांकि वो डोमिनेंट जीन है। हाँ बेटा बोलिए, और कोई कुछ बोल? हेलो, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है?
सीन बना दे बना दे। कौन बोल रहा है? राघव? राघव कौन है? राघव कहाँ से आ रहा है ये? हेलो, डू यू वांट टू चेंज द प्रेजेंटर टू राघव? चलो ठीक है। तो हाँ, अंशुमन और रितेश, यस सर। हाँ अंशुमन, रितेश, खुशी, ये सब मिल गया आंसर आप लोगों को? यस सर। खुशी, कुड यू गेट आंसर? यस सर। सेटिस्फाइड हो? यस सर। ओके। गिरजेश, आपने कहा था एराई 6444 में लूज स्मट ससेप्टेबल हो गया। तो ससेप्टेबल तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोई भी वैरायटी, नॉट ओनली हाइब्रिड, कोई भी हो जाएगा, या कोई भी नया रेस आ गया, कोई नया डिजीज आ गया तो होता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। now you have to search the donors for that, for correcting the defects. बोलिए। गिरजेश सर मेरे यस सर। बोलो। सर लूज स्मट तो नया डिजीज नहीं है सर, ये तो बहुत मतलब हाइब्रिड राइस में सर बहुत ज़्यादा प्रभाव मतलब इफेक्ट डाल रहा है। अरे तो तुम्हारा 6444 क्या समझते हो नया है? 15 साल पुराना है, मोर देन 15 ईयर्स। और एक वैरायटी 5 साल 10 साल से ज़्यादा नहीं चलती है, तो आउटब्रेक तो होगा ही, ब्रेकडाउन तो होगा ही, हैं? यू करेक्ट द पेरेंटल लाइन, फीमेल या मेल को करेक्ट करो, तब F1 जो है रेसिस्टेंट आएगा। So you have to go for correcting the defects, for improving the parental line of that hybrid. Okay? ठीक है गिरजेश? हाँ। आदित्य, आपने कहा क्रॉस बार बार रिकरेंट पेरेंट्स से ही क्यों क्रॉस करते हैं? आदित्य, यस सर। ये बेटा प्रश्न आपने क्यों किया? इसमें क्या कहना चाहते हैं आप बेटा? सर जैसे हम वीट में जो है कि सर रस्ट रेसिस्टेंट का सर्जिंग डालना चाहते हैं एक रस्ट ससेप्टेबल वैरायटी में। हाँ, तो सर जो है कि इसमें बार क्रॉस कराते हैं, तो इसी को आप कंपेयर करके मतलब हम इससे रिकरेंट क्रॉप से क्यों डोनर क्रॉप में करा सकते हैं? क्रॉप नहीं बेटा, क्रॉप नहीं, पेरेंट। क्रॉप नहीं बोलो, पेरेंट बोलो। हाँ, रिकरेंट पेरेंट पे आप क्लियर हो गए क्यों कराएंगे बार बार? क्लियर है? बताओ, क्लियर है तो बताओ क्यों करते हैं रिकरेंट पेरेंट बार बार यूज करते हैं, क्रॉस क्यों करते हैं? अरे बेटा तुम अपने ही सारी बात बोल रहे हो, तो हम क्या करें उसमें? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। तुम कह रहे हो गया क्लियर, फिर कह रहे हो कंफ्यूजन है, तो क्या कंफ्यूजन वो तो बताओगे तब ना हम समझें। बोलो। कंफ्यूजन बस इतना है कि सर रिकरेंट पेरेंट से बार क्रॉस करा रहे हैं, तो क्या मतलब वो डोनर क्रॉप से क्यों करा सकते हैं? फिर क्रॉप बोल रहे हो बेटा, बड़ा गुस्सा आ रहा है अब हमको। क्रॉप क्यों बोल रहे हो? सॉरी सर। अरे पेरेंट बोलो ना, सही वर्ड तो यूज करो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में। पेरेंट बोलो, जीनोटाइप बोलो, वैरायटी बोलो, क्रॉप क्या बोल रहे हो? यही कंफ्यूजन, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है तुमको। मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, अब कटाना मखाना मैंने सबसे बड़ा खाना दिया। शिक्षक क्या आ जा रहा है? लोग कहते थे विवेक्स में नहीं आता है। चलो ठीक है। वो बेटा रिकरेंट पेरेंट का मतलब यही है ना, रेसिपिएंट पेरेंट। रेसिपिएंट पेरेंट का मतलब है कि द पेरेंट जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो,
और इसके बाद इम्प्रूव के बाद जब निकलेगा लास्ट में फाइनल, तो वो वही वैरायटी होगी, दूसरी नई वैरायटी नहीं होगी। और वही वैरायटी पाने के लिए बार बार अगर बैक क्रॉस उसी से नहीं करोगे तो उसका जीन कैसे आएगा? एक ही बार में सारा जीन थोड़ा आ जाएगा। बार बार बैक क्रॉसिंग करोगे रिकरेंट पेरेंट से, तभी सारे उसके जीन बैकग्राउंड में जाओगे ना। डोनर उसी में डाल दोगे तो फिर तो क्रॉस गड़बड़ हो जाएगा, फिर कितने साल बैक क्रॉस करोगे? और डोनर की ज़रूरत क्या है? डोनर की ज़रूरत तो एक ही बार है, क्योंकि एक जीन चाहिए, वो जीन तुमको आ गया फोन में, और उसको बचा के रखो हर साल। नेक्स्ट ईयर जा रहे हो तो भी वो जीन बना हुआ है उसमें, तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक तो है। आदित्य ओके नहीं, क्लियर हो तो बोलो, नहीं तो और समझाएं। सर क्लियर हो गया। वेरी गुड, गुड बॉय। अनुष्का, यस सर। हाँ आपका क्लियर हुआ अनुष्का? नहीं, वाई यू आर सेलेक्टिंग द प्लांट सिमिलर टू रेसिपिएंट? इसीलिए सिमिलर टू रेसिपिएंट पे ही तो जाना है लास्ट में, उसी को तो इम्प्रूव करना है। तो लास्ट में अगर उसी तरह अगर पौधा आ जाएगा तो किसान डरेंगे नहीं ना, वो कहेंगे हाँ ये तो मेरी वैरायटी है, ओके सर हमको यही चाहिए था, इसमें आपने रेसिस्टेंट डाले, हाँ हमने डाल दिया, खुश हो जाएंगे सर। तो वही तो करना है अनुष्का। ओके सर। या दीपांजन, आपका दीपांजन क्लियर हुआ? स्मॉल और स्मॉल हैं दीपांजन नहीं हुआ हो गया कि स्मॉल आर क्यों लेते हैं? प्लीज बैठिए। नहीं हो गया, क्लास खत्म हो गया। ये आकाश, हाँ चाय बनाओ अब बुला लो उनको भी, पीके सिंह वगैरह बुला लो। मीटिंग खत्म हुई। अब बस एक मिनट। हाँ ठीक। अब बेटा स्मॉल आर क्लियर हुआ क्यों लेते हैं? रिगार्डिंग हो रही है क्या? हाँ सब कर रहे हैं। रिसेसिव में वो ये क्वेश्चन आंसर और चल रहा है, पढ़ लिए अब क्वेश्चन आंसर। हाँ बेटा, तो जो सर रिसेसिव जीनोटाइप है ना स्मॉल बेटा रिसेसिव नहीं, वो वही रेसिस्टेंट है, वही जो यही कंफ्यूजन होता है, वही स्मॉल आर इज द रेसिस्टेंट जो कि तुमको चाहिए होगा, इसीलिए बार बार उसको हम सेलेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, बाद में घर में सोच लेना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि स्मॉल आर के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी से रेसिस्टेंट गवर्न हो रहा है, और उसको आप F1 में तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो ससेप्टेबल हो जाएगा। फिर हम BC1 जाते हैं, फिर BC1 F2 जाते हैं, तब जाके हमको स्मॉल आर वो पौधा मिलेगा। तब हम जब सारे को स्क्रीन करेंगे इनोकुलम डाल के, तो जो पौधा रेसिस्टेंट होगा उसी में समझो कि स्मॉल आर है। बात समझ में आई? उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। दीपांजन क्लियर हुआ कि नहीं? तो शुड आई स्टॉप नाउ? दीपांजन, राघव, गिरिजेश, आदर्श बंद कर सकते हैं आप? हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? पीयूष पटेल बोलिए। आकाश चाय बनाइए। आकाश, सर ये जो हाँ वीडियो है उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर में कराया है। कैपिटल आर स्मॉल आर और किस जनरेशन में? कैपिटल आर और कैपिटल आर किस जनरेशन बेटा? BC4 में। BC4 में क्या किए हैं? हाँ ओके। सर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्रॉस कराए हैं। हाँ तो सर जब इसके पहले वाले जनरेशन में BC3 F2 में सर हमें स्मॉल आर मिल गया और वही रेजिस्टेंट होगा, तो वही अलग से पता चलेगा। तो सर स्मॉल आर लेने की जगह कैपिटल आर स्मॉल आर को लेंगे सर। ओके बेटा BC4 में जरा देखो, BC3 F2 में स्मॉल आर आपने सेलेक्ट किया। यस सर। और स्मॉल आर का क्रॉस किससे किया? रेसिपिएंट से किया। रेसिपिएंट इज क्या? कैपिटल आर है बेटा। और कैपिटल आर का जब क्रॉस करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या मिलेगा आपको? नो सर, तो सर वीडियो में BC4 में कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ हो गया है क्रॉस। एक मिनट
अच्छा, BC3 BC4, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? क्रॉस तो कैपिटल आर स्मॉल, एक मिनट, BC3 F2, BC3 F2 जरा देखो, उसमें स्मॉल आर आपने सिलेक्शन किया ना उस रस्ट रेजिस्टेंस के लिए। नहीं खुला तो था, वो नहीं, वो दिखे थे। उसको जब प्लांट सेलेक्ट किया हो स्मॉल आर तो उसको क्रॉस किससे करोगे? कैपिटल आर से करोगे ना। यस सर। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस किए तो जो सारे सीड आए वो क्या होंगे? सर वो कैपिटल आर स्मॉल आर सब सारे पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे, ठीक ना। अब उनका क्रॉस किससे करोगे? दो ही ऑप्शन है। उनका क्रॉस सर। यस सर। हाँ, किससे करोगे? दो ही ऑप्शन, या तो आप सेल्फ करो, हेल्पिंग करेंगे। यस, या तो बैक क्रॉस करो। बैक क्रॉस करने से क्या होगा? जल्दी तुमको बैकग्राउंड में जाओगे। अपने रिकरेंट पेरेंट का जीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आएगा जैसे बैक क्रॉस करोगे तो, और सेल्फिंग करोगे तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब आप जो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, हाँ, ये जो BC4 होगा उसमें किसका क्रॉस होगा? स्मॉल आर कैपिटल आर का? बेटा स्मॉल आर कहाँ आ रहा? BC4 में है ही नहीं। BC4 में स्मॉल आर है आपके पास? हाँ, BC आ जाइए डॉक्टर साहब, BC4 में आपके पास स्मॉल आर है ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्लोज कर रहा हूं, अब नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, ओके। अब उसी में उसका अब उसी में फंस गया है स्मॉल आर, इसको बंद